हे हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का हेरिडिटी चैप्टर का सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन इट विद द क्वेश्चन दैट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ अ बेबी। एक बेबी की सेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट द बेबी इज़ अ गर्ल और अ बॉय। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आपने कई जगह सुना होगा दैट न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ आती है इसके रिगार्डिंग दैट द किल्ड अ मदर बिकॉज शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। सो हम देखते हैं इस पे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके पहले आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। What is your gender or what is your sex? Are these the same questions or there is a difference? What do you think? Okay, so I'll tell you that gender is defined culturally. सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जेंडर डिसाइड होता है एंड सेक्स इज़ बायोलॉजिकल टर्म। आप बायोलॉजिकली कैसे बॉर्न हुए हो, what chromosomes you have, which reproductive organ you have, which hormones you have, these all represent your sex. But the gender is what society defines. It can be changed. सोसाइटी के अकॉर्डिंग फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की केयर करना, किचन में काम करना, बट मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा ऑफिस जाना, पैसे कमाना। कि एग्रेसिव चीज़ें मेल करेगा और थोड़ी सॉफ्ट चीज़ें फीमेल करेंगी। दीज आर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। इसके बेसिस पे वो जेंडर को डिवाइड करते हैं। ओके, विल सी दैट जेंडर refers to a social, cultural, and personal identity of individual. So, yeah, one more thing. Gender is a personal choice to denote yourself as a he, she, they, them. It's your choice, and there's nothing bad in that. If biological boy wants to dress like a girl, it is okay. He can denote himself as a she. So that will be a gender. Biologically you are a male, but in societal norms and by your characters you are a female. So it is totally okay. So the gender, it refers cultural and personal identity of individual, and sex, it refers biological and physical characters. At this stage you all are going through biological changes. The social role, behavior, expressions, based on these all gender is defined. Okay, and sex, how it is defined by physical and physiological attributes. Then categories in gender, there could be male, female, non-binary, transgender, genderqueer. Okay, and but in sex there are only three: male, female, and intersex. One important thing, that gender could be changed over time. The societal norm, your thoughts, that could be changed. It is okay, but sex, it could not be changed biologically. Okay, there are many techniques, new techniques to change the sex of a person, but naturally it is fixed. यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने देखा हम ह्यूमंस की जो सेक्स होती है वो बायोलॉजिकली डिफाइन होती है। बायोलॉजिकली मतलब हमारे पास में क्रोमोसोम होना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे क्या है क्रोमोसोम, कहाँ से आ रहा है, बट ये क्लियर है सेक्स कैसे डिफाइन हो रही है, बायोलॉजिकली। बट अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक एलिगेटर, ये मेल होगा या फीमेल होगा ये पता है कैसे डिफाइन हो रहा है? टेम्परेचर से। जब मम्मा एलिगेटर ने एग ले किए तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या था, like if it is around 33 degrees, so the baby alligator would be male, and if the temperature around 30 degrees, then the baby alligator will be female. Turtle sex is also dependent on, if temperature is more than 31 degrees, then baby turtle will be female. Okay, this is a sign of male and this is a sign of female. Okay, remember this. In washrooms we have seen, isn't it? Nemo, yeah. The fish is Nemo. Everyone has seen the movie. If not, then go and watch it. It's a fun movie. So, Nemo,
द क्राउन फिश, दीज आर बॉर्न एज मेल, ओके, ये बॉर्न होती हैं एज अ मेल, बट व्हेन दे ग्रो ओल्डर, जब थोड़ी और बड़ी होती हैं और जब फीमेल लीडर की डेथ हो जाती है तो मेल खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेता है टू बिकम अ लीडर. Isn't it interesting? So let's come back to our question. Who is responsible for sex of a baby? Sex अब हमें पता चल गया है क्या होता है. Biologically human baby क्या born हो रहा है, either male, female. Okay? ये किस पे डिपेंड है? क्रोमोजोम्स पे. अब हम देखते हैं क्रोमोजोम्स के बारे में. क्लास 8th में, क्लास 9th में हम सेल पढ़ते आ रहे हैं, isn't it? So क्लास 9th में जो हमने सेल पढ़ा था उसमें याद है कि उसके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. अब ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है और ये डीएनए ऐसे रैप होकर के क्रोमोजोम बनाता है. तो हमारी सेल्स में क्रोमोजोम्स ना पेयर में होते हैं, एक के साथ दूसरा होता है. वो भी हम देखेंगे क्यों होते हैं वो पेयर्स में. सो ये क्लियर है क्रोमोजोम कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर. ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. देखो सारे ऑर्गेनिजम्स में ना अलग अलग पेयर्स हैं. ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, डॉग सेल्स में 39 होते हैं, कैट में 19 होते हैं, मस्कीटो में 3 ही पेयर्स होते हैं. ये वाली जो बटरफ्लाई होती है ना, पॉलीमेटस एटलांटिकस, इसमें 224 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. एंड एक और प्लांट होता है, एडर्स टंग बोलते हैं इसको. ये देखो ये स्नेक की टंग जैसा दिख रहा है, इसको एडर्स टंग बोलते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम. इसमें कितने पेयर्स होते हैं, 720 पेयर्स. इतना छोटा सा प्लांट होता है, ये देखा होगा आप लोगों ने कहीं. तो इट हैज़ 720 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स. ह्यूमन में हमने देखा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. ओके, अब इसमें ये जो 23rd पेयर है, इसमें ना यहीं पर पूरा खेल हो रहा है कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा. कैसे, यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई एंड एक्स एक्स. किसी ह्यूमन की सेल में एक्स वाई क्रोमोजोम है, देन दैट ह्यूमन विल बी मेल. ओके, आप में से जितने भी बायोलॉजिकल मेल हैं, आप सबके बॉडी में एक्स वाई क्रोमोजोम होगा. ओके, एंड जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी सेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा. फाइन, यहाँ तक क्लियर है. अगर एक्स वाई है तो मेल है, एक्स एक्स है तो फीमेल है. क्लियर. बॉडी में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, सोमैटिक एंड गैमेटिक. गैमेट्स क्या होते हैं, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है ना, उनको गैमेट्स बोलते हैं. और सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके जो सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं. ओके, इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट स्पर्म इज़ अ मेल सेल एंड एग और ओवम इज़ अ फीमेल सेल. तो दीज 2 सेल्स आर गैमेटिक सेल्स. ओके, और अदर सेल्स जो बाकी जो पूरी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, दो सेल्स आर सोमैटिक सेल्स. जो भी हम सेल्स के बारे में जनरली पढ़ते हैं, दोज आर सोमैटिक सेल्स. ओके, तो अब क्या है, ये सोमैटिक सेल्स में यहाँ पे ये देखो इनके पास में पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, बट गैमेटिक सेल में सिंगल क्रोमोजोम है. क्यों? एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, ज्वाइन होगा तभी तो पेयर बनेगा. ऑलरेडी पेयर में रहेंगे तो फिर तो 4 टाइम्स नहीं हो जाएंगे, 2 मदर के 2 फादर के 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम लेके घूम रहे हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल, दूसरा ऑर्गेनिज्म ही बन जाएंगे. तो इसलिए गैमेट्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 होते हैं बट सिंगल होते हैं. ओके, और सोमैटिक सेल्स में ये पेयर में होते हैं. ओके, सोमैटिक सेल जो पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं. गैमेटिक सेल्स हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. ओके, स्पर्म इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ओवम और एग इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल. फाइन. सो क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे डाइप्लॉइड मतलब 2, हाइप्लॉइड मतलब 1. फाइन. अब हमने देख लिया कि ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है और ये लिमिटेड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही. फाइन. सो ऐसी होती है सोमैटिक सेल. न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम है ये कैसे हैं, पेयर में. ओके, गैमेटिक सेल यहाँ पे देखो सिंगल क्रोमोजोम है. जो 23rd क्रोमोजोम है ओवम का हमेशा एक्स है और स्पर्म का
इसके पास में या तो x है या फिर y है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो फटाफट से कमेंट करके बताओ। So let's come back to our question. Who is responsible for sex of the baby? Father or mother? अगर मेल है तो इसके पास में XY क्रोमोसोम होगा, फीमेल है तो XX क्रोमोसोम होगा। ठीक है। मेल की गैमेटिक सेल क्या है? स्पर्म। स्पर्म या तो स्पर्म में X होगा या फिर स्पर्म में Y होगा। ओके, क्योंकि ये गैमेटिक सेल है, गैमेटिक सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम था। ओके, डबल नहीं थे, सिंगल थे, तो या तो X हो जाएगा या फिर उसमें Y होगा। तो फीमेल में दोनों ही X हैं, तो हम एग में X ले लेते हैं। ठीक है, सिंगली क्रोमोसोम X और स्पर्म में आइदर X और Y, या तो X है या फिर Y। अब फादर का स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम था और फीमेल का एग जिसमें ऑब्वियसली X ही क्रोमोसोम है, ये दोनों जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बनेगा? XX और XX फीमेल। स्पर्म में एक अगर Y क्रोमोसोम है और मदर के पास तो X है ही, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा XY, दैट इज़ अ मेल और अ बॉय। सो यहाँ से क्या समझ आ रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड की सेक्स के लिए? या दैट इज़ अ फादर। नॉट एग्जैक्टली फादर, वो भी उनके हाथ में नहीं है कि विच स्पर्म शुड फ्यूज विथ एग, बट या सो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज ड्यू टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्म, आइदर X और Y। जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा कि मेल है या फिर फीमेल है। क्लियर है? अब एक ये होता है पुनेट स्क्वायर। अगर फादर के पास में XY है, मदर के पास में XX है, क्या क्या चांसेस बनते हैं कि इनके जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो गर्ल होगी या बॉय होगी? क्या चांसेस हैं कि कितने परसेंट मेल होगा इनका ऑफस्प्रिंग और कितना परसेंट चांसेस है कि वो फीमेल होगी ऑफस्प्रिंग? ओके, तो इसको हम पुनेट स्क्वायर से देखेंगे। सो अगर फीमेल के पास से X आया, मेल के पास से X आया, तो क्या होगा? गर्ल। मेल के पास से Y आया, फीमेल के पास से X आया, तो क्या होगा? बॉय। अगेन फीमेल का X और मेल का X तो गर्ल, मेल का Y, फीमेल का X, देन बॉय। सो ये कितनी प्रोबेबिलिटी हुई कि चाइल्ड जो है वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा? ओके, दोनों की प्रोबेबिलिटी जस्ट कमेंटेड डाउन। सो यहाँ तक पूरा क्लियर है? जस्ट फास्ट हम एक रिकैप कर लेते हैं। सो हमने स्टार्ट किया था जेंडर एंड सेक्स से। जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस था? जेंडर जो सोशल एंड पर्सनल आइडेंटिटी है। जेंडर इट्स योर पर्सनल चॉइस एंड योर पर्सनल आइडेंटिटी, हाउ एवर यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। आपको खुद को कैसे आइडेंटिफाई कराना है, दैट इज़ योर जेंडर। सेक्स इज़ बायोलॉजिकल कैरेक्टर से, आप बायोलॉजिकली कैसे हो, दैट इज़ योर सेक्स। हेल्थ केयर के जो फॉर्म्स है वहाँ पर हमसे सेक्स के बारे में पूछा जाता है, विच व्हाट इज़ योर सेक्स। बाकी सब जगह जैसे वर्क प्लेस में, एजुकेशनल सोसाइटी में, यहाँ हर जगह आपसे आपके जेंडर के बारे में पूछा जाता है जनरली। नेक्स्ट हमने देखा था कि ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर 23rd पेयर में XY है सो द पर्सन विल बी मेल, एंड XX है तो दैट पर्सन विल बी फीमेल। ये 23rd पेयर में ही हो रहा है। ठीक है। बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स और गैमेटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो हमारी पूरी बॉडी की सेल्स होती है वो सोमैटिक सेल्स होती हैं, और जो गैमेटिक सेल्स होती हैं ये सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। इन स्पर्म एंड ओवम आर गैमेटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और गैमेटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ से हमने कंक्लूड किया था कि फादर के पास में एज ही इज़ अ मेल तो उनके पास X और Y क्रोमोसोम है, मदर के पास में XX क्रोमोसोम है। तो जब गैमेटिक सेल में, फादर की गैमेटिक सेल में आइदर X क्रोमोसोम होगा और Y क्रोमोसोम होगा, मदर के पास में तो X है ही। अब जब X और X, फादर का X और मदर का X फ्यूज़ होंगे तो बनेगा XX। ओके,
सो विच विल गिव राइज टू अ गर्ल। और अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम फ्यूज़ होंगे तो बॉय होगा। सो इट इज़ जस्ट अ चांस कि कौन सा स्पर्म फ्यूज़ हो रहा है एग के साथ में, आइदर इट इज़ कैरिंग एक्स और वाई। सो इसमें मदर का कोई रोल नहीं है और नॉट एग्जैक्टली ऑफ अ फादर का कोई ऐसा कोई रोल है कि वो खुद से स्पर्म सिलेक्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट अ चांस कि मेल होगा ऑफस्प्रिंग या फीमेल होगी। ओके, क्लियर है? कोई भी डाउट हो, एक भी डाउट, जस्ट कमेंट इट बिलो। ओके, एंड आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।